Good morning, students. Right. Once again, I came here and by taking a topic called the power of the lens. Is it right? As we know, right, we have already completed, right, the 50th period, right. So this is the 51st period in which we came to know about the power of the lens, which is also a very important role play. Is it right? So let's see here. The reciprocal of the focal length is known as the power, right? So here I have written power is equal to inverse of the focal length. Is it right? SI unit of the power is diopter. So you should know that. Diopter, yes. When the focal length is in the meter. तो याद रखना है diopter हम तभी बोलेंगे जब उसको हम लोग मीटर में रखते हैं, right? When we keep it in the meter. Very good. Now for that, let me take some examples so that you can easily understand. Just for example, here I have taken an example. Focal length find करना है plus diopter. Also identify the lens. So now please identify the lens, which lens it is. So you know when it is plus, diopter plus मतलब power is plus. When power is plus, focal length is also plus. तो now tell me, plus कौन सा लेंस का focal length होता है? Plus in the sense of sign convention. Sign convention is what? Here you can see the lens of convex lens is what? Positive focal length, right? So let me write here plus focal length. तो प्लस किसका होता है? कॉन्वेक्स का होता है. माइनस किसका होता है? कॉन्केव का होता है. So once again, that is why in the reason if it is plus, so definitely you can see here it is right. Minus is plus is there everywhere. It is plus. So 1 by p you need the focal length. तो मैंने 1 by p कर दिया. तो p की जगह देखो 10 रख दिया. So you are getting 0.1 meter. Because as I told, जब ये डायरेक्टर रहता है तो focal length मीटर में रहेगा. But sometimes or many times they may ask to find in the centimeter. So you know that if the whole is the meter, you have to multiply. Is it right? 100 multiply करने से वो सेंटीमीटर में आ जाएगा. In this way we got a 10 centimeter. Is it clear? अब मैं दूसरे क्वेश्चन में इसको जस्ट उल्टा करके देता हूँ, right? So I have written here, find the power of the lens having minus. सिर्फ साइन मैंने चेंज कर दिया है. तो माइनस सिंपली इंडिकेट फॉर द कॉन्केव लेंस. कीप इट इन माइंड. ओके. फोकल लेंथ माइनस मतलब कॉन्केव लेंस होता है फोकल लेंथ का माइनस होने से. वन सेकेंड पी इज इक्वल टू 1 बाई एफ. दिस इज योर फोकस, राइट. तो इन प्लेस ऑफ एफ यू पुट माइनस. माइनस यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा. सो इट इज नाउ 1 बाई 10. बट व्हेन यू राइट दिस नाउ व्हाट इज दिस? 10 लिखने के बाद ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन अगर इसको डायरेक्टर में लिखना है तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100. सो 100 चला गया इन द न्यूमरेटर पार्ट एंड इट बिकम माइनस 10. सो अगेन यू गॉट द सेम मैग्नीट्यूड, बस सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है. माइनस से सिर्फ हम लोग इसका नेचर ऑफ लेंस को डिफाइन कर सकते हैं. इज इट राइट? नाउ विल सी इन आवर सेकेंड स्टेप दैट हाउ दे आर कंबाइंड. इज इट राइट? सो कॉम्बिनेशंस का जरूरत क्यों पड़ता है? कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Dear students, now you can see there is a question, right? Why the number of lenses are combined? Means I am in the topic called the combination. So we should know that why lot of lenses are combined. So there is one step or there is one image in which I can show here the combination का एक process दिखा दिया और एक process है तुम्हारा. So now let me clear you this derivation is also very important. ये बहुत बार आ चुका है तुम्हारा. Is it right? बहुत ही easy है, कुछ भी नहीं है. First, let me clear about the image. When two lenses are combined, here I have taken a convex lens. Is it right? And suppose this f1 is the focal length of this lens and f2 is the focal length of this lens. Is it right? And some points I have given. रे तुम्हारा object, O for object, I dash image है, but this image is due to the first lens. The way I have discussed in the lens maker. Similarly, here I am discussing. तो फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज तुम्हारा आई डैश में गिर रहा है, बट व्हेन द रे पास एंड स्ट्राइक विद द सेकंड लेंस, देन ड्यू टू सेकंड लेंस एक्चुअली द इमेज फॉर्मेट आई. इट मीन्स वेरी सिंपल. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन यू यूज नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, एक तो इसका नेचर है कन्वर्जिंग करना, और जितना ज़्यादा लेंस लगाएंगे वो कन्वर्जिंग और भी ज़्यादा होते जाएगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लेंस की तरफ भागेगा. कौन? द इमेज पॉइंट. It means that the conversion power is more and more. Okay. So once again, object O image I dash for the first lens. Is it right?
and for the second lens image is at the eye. Then what is eye dash? Eye dash is then it is the virtual image, sorry virtual object, क्योंकि image तो यहाँ बन चुका है. अब ये रियल ऑब्जेक्ट ये हो गया इमेज, बट अगर सेकेंड लेंस की वजह से इमेज यहाँ आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? कम ऑन हियर. वही लिखा है देखो, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम O to M, O to M, then it's refracted at I. बाय द लेंस फार्मूला क्या होगा? ये है सिंपल लेंस फार्मूला. अब इसमें देखो f के जगह मैंने f1 लगाया बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेंस, v की जगह v डैश लगाया v डैश, u अपनी जगह पे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्लियर? इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली व्हेन द रे पासेस फ्रॉम mn टू ni, mn टू ni, फिर से वही ये भी लेंस है तो लेंस फार्मूला लगा लिया. इन दैट लेंस फार्मूला ऑल्सो दिस इज फॉर द सेकेंड लेंस, सो आई हैव रिटन f2. Then what happened? You can see image हो गया v, तो v की जगह मैंने v डाला, but u is the object. अब मैं u नहीं डाल सकता हूँ because ये second lens तुम्हारा ये incident और refractive. So हो गया, मैंने पहले ही बोला था this eye dash is act as a what? Virtual object. Is it right? Let me write here, it is for you virtual what? Object. कभी-कभी पूछता है तुमको. So now this is the formation. Now if they both combine and get the I, क्योंकि ये I मिलने के लिए दोनों combine की जरूरत है. So combining equation 1 and 2, I got this. इसमें देखो v dash cancel हो जाता है ये बस. So just think it कि what is u is the object distance and what is v is the image distance. But ये image distance second lens की वजह से बन रहा है और object distance first lens की वजह से बन रहा है. यानी कि दोनों को combine हो गया, यानी कि system हो गया. अब एक lens हो गया. तो फॉर वन लेंस अगर मैं फोकल लेंथ को कैपिटल F लिखूँ मतलब सिस्टम के लिए, तो फिर इसका लेंस फार्मूला आ जाएगा 1/v माइनस 1/u. आई थिंक इट्स क्लियर. v हो गया सेकेंड लेंस के लिए, u हो गया फर्स्ट लेंस के लिए. देखो कंबाइन किया. एंड इन द इक्वेशन नंबर 3 ऑल्सो आई एम गॉटिंग दिस. सो क्या मैं इसकी जगह कैपिटल F नहीं लिख सकता? सो इफ आई कंपेयर बाय इक्वेशन 3 and 4, आई गॉट 1/f इज हियर, इट इज इक्वल टू द f1 प्लस f2. और तुमको पता है कि इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ को पावर भी बोला जाता है. सो यू कैन राइट p इज इक्वल टू p1 प्लस p2. तो एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने बन रहा है कि पावर्स आर ऑलवेज एडिटिव. अगर 3-4 और लेंस होता तो मैं सारा को ऐड कर देता. इज इट क्लियर? ओके. अब तुम्हारे सामने ये बचता है, तो देखो क्यों हम नंबर ऑफ लेंसेज लेते हैं. एक तो देखो अभी भी हमने किया मैग्निफिकेशन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट विजुअल क्लियरली बाई अ लेंस, तो हम दूसरा लेंस लगा देने से उसको अच्छी तरह से हम लोग उसको विजुलाइज कर सकते हैं. यानी कि उसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, तभी तुम देख पाते हो. तो मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए फाइनल इमेज. अब एक लेंस का रियल क्या बनता है? इन्वर्टेड. रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड. उसको सीधा करने के लिए तो सीधा को फिर से वो उल्टा कर देता है. तो व्हाट हैपन, टू लेंसेज की वजह से यहाँ जो फाइनल इमेज बनेगा वो तुम्हारा इरेक्ट यानी कि सीधा रहेगा. फिर से दूसरा लेंस लगाएंगे फिर से टेढ़ा हो जाएगा. सो दिस डिपेंड्स ऑन यू. तो यानी कि टू मेक फाइनल इमेज इरेक्ट और इमेज इफेक्ट, जो इफेक्ट्स होते हैं जैसे तुम्हारा स्पेरिकल एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन, ये सब तुम्हारा इफेक्ट्स है या फिर डिफेक्ट है. बेटर वी से डिफेक्ट्स. तो इन डिफेक्ट्स को अगर सीधा करना है, अच्छा करना है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इस्तेमाल करते हैं. इज इट राइट? थैंक यू.